This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم. کلاس اول مضمون اردو باب نمبر 3. سبق کا عنوان ہے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع پر بات کریں گے. وہ ہے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تعارف کروایا گیا ہے. سبق آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عقیدے اور عقیدت سے بھرپور سبق ہے جو بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی حیثیت سے متعارف کراتا ہے. اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق، رحم دلی اور انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کو سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آخری نبی ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ ہیں. یہ سبق بچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، احترام اور سنت پر عمل کا جذبہ بیدار کرتا ہے. اساتذہ اس سبق کے ذریعے عقیدے کی مضبوطی، سیرت طیبہ کی محبت اور اسلامی اقدار کی بنیاد بچوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں. اب اس سبق کو پڑھانے کا مقصد بیان کرتے ہیں. بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تعارف کروانا، یہ سمجھانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کی ترغیب دینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا. اس کے بعد اس سبق آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کریں. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو سچائی، اخلاق اور اچھے عمل کی تعلیم دی. اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ دیے گئے سبق کا نثر پارہ، سلیس اردو اور تشریح لکھیں.
पैराग्राफ नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अब सलीस उर्दू और तशरीह लिखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं। आप अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। आपकी वालदा का नाम हज़रत आमिना था, जिन्होंने आपकी बहुत मोहब्बत से परवरिश की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, किसी को कभी दुख नहीं देते थे और सबके साथ अच्छा सलूक करते थे। लोग आपको अमीन यानी अमानतदार कहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा, ताकि वो सबको सच्चाई, नेकी और अल्लाह की इबादत का रास्ता बताएं। आपने सबको सिखाया कि सब इंसान बराबर हैं और हमें सच बोलना, बड़ों का अदब करना और सबसे मोहब्बत करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, दरूद पढ़ें और आपकी तालीमात पर अमल करें, क्योंकि इन्हीं में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। लें जी, अब पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, आपने हमें ये बातें सिखाई। अल्लाह ताला को एक मानना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, छोटों से प्यार और ख्याल रखना चाहिए। हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपकी हर बात पर अमल करते हैं, क्योंकि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। अब इस पैराग्राफ की सलीस उर्दू और तशरीह मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का अच्छा तरीका सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ताला एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए और हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जैसे वालिदैन, उस्ताद और बुज़ुर्ग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि जो लोग मुश्किल में हों उनकी मदद करो, उनके काम आओ, छोटे बच्चों से मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो।
लें जी, ये मैंने आपके साथ सलीस उर्दू और तशरीह शेयर कर दी हैं। अब हम आते हैं मशक की तरफ। मशक जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मायनी समझें और याद करें। अल्फाज मायनी: नबी, खबर पहुंचाने वाला, यानी अल्लाह का पैगाम लोगों को बताने वाला। रसूल, अल्लाह की तरफ से भेजा गया। इज्जत, शान, बड़ाई। वालिद, बाप, अब्बू। वालिदा, माँ, अम्मी। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ये था जी सवाल नंबर 1। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में कॉलम मिलाने हैं। पहला कॉलम है अल्लाह ताला को, हमेशा, दूसरों के, बड़ों की, छोटों का। और दूसरा कॉलम है ख्याल रखो, इज्जत करो, एक मानो, सच बोलो और काम आओ। अब हम कॉलम जो पहला है उसको मिलाएंगे। कॉलम जो दोम है, दूसरे नंबर पे है, अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, दूसरों के काम आओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो। ये था जी सवाल नंबर 2। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। दूसरा सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम वालिद और वालदा का नाम बताएं। तो इसका जवाब बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमिना है। तीसरा सवाल है जी आपने हमें कौन कौन सी बातें बताईं? तो इसका जवाब बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें बताईं कि अल्लाह को एक मानो, हमेशा सच बोलो, दूसरों के काम आओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि मिलकर करें बात। अब मिलकर कौन सी बात की जाए? वो कहता है कि एक दूसरे से पूछें कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन बातों पर अमल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दोस्त आपस में बैठे हैं और वो फिर एक दूसरे से बात करेंगे। जैसे साबर, आसफ भाई आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी बातों पर अमल करते हैं? तो आसिफ आगे से कहता है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। फिर आसिफ पूछता है आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बातों पर अमल करते हैं? तो फिर साबर जवाब देता है मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। फिर आबिद आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात पर अमल करते हैं? तो अहमद बताता है मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करता हूँ। अब हम सवाल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। लफ्ज़ों का खेल। मारिया से खेलते हुए मुख्तलिफ हरूफ के ब्लॉक इधर उधर हो गए हैं।
आप दिए हुए अल्फाज के हरूफ तलाश करने में उसकी मदद करें। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे आखिरी, नेकी, मोहब्बत, इज़्ज़त, शहर, सच। अब इसमें सिर्फ आखिरी को बताया गया है, बाकी हमने खुद से करना है। तो अगर हम देखें तो पहली लाइन में नून ये काफ छोटी ये है, तो ये क्या बन जाएगा, नेकी। दूसरी लाइन में देखें मीम है बे, बे और ते, ये बन जाएगा मोहब्बत। तीसरी लाइन में अलिमद्दा खे रे छोटी ये आखिरी। अगर हम नीचे आए तीसरी लाइन और चौथी लाइन में, तो सीन और चे सच। अब पांचवी लाइन में आए तो शीन हे और रे शहर। और अगर छठी लाइन में आए एन जे और ते इज़्ज़त। इस तरह हम जवाबात तलाश कर सकते हैं। ये सारे अल्फाज जो पहले बताए गए थे, जैसे आखिरी, नेकी, मोहब्बत, इज़्ज़त, शहर और सच, ये हमने तलाश कर लिए हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, सुने और लिखें। ये इमला, यहाँ पर हम इमला की प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। जब इमला लिखेंगे बच्चे, तो इमला किन किन अल्फाज की लिखवाई जा सकती है, वो है अरब, शहर, भेजे, बाद, तालीम, हमेशा, अमल, राजी। ले जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे। अम्मी अब्बू किन कामों के करने का कहते हैं और किन कामों से रोकते हैं, एक दूसरे को बताएं। अब इसका जवाब क्या बनता है, इसका जवाब ये बनता है कि मेरे अम्मी अब्बू दरअसल काम करने का मुझे कहते हैं। कौन कौन से काम, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, दूसरों के काम आओ। और मेरे अम्मी अब्बू दरअसल काम करने से मुझे रोकते हैं, वो कौन कौन से काम हैं, लड़ाई करने से, झूठ बोलने से, घर से बगैर वजह बाहर निकलने से। लें जी, ये था सवाल नंबर 7। अब आते हैं हम सवाल नंबर 8 की तरफ। पढ़ें, सच बोलो, खाना खा लो, लड़ाई मत करो, इस वक्त बाहर ना जाओ। गौर करें तो पहले दो जुमलों में कोई काम करने का कहा जा रहा है और आखिरी दो जुमलों में किसी काम से रोका जा रहा है। इन जैसे दो दो जुमले लिखें। कोई काम करने को कहें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे है नमाज पढ़ लो, पानी ले आओ। ठीक है जी। अब किसी काम से रोकें, झूठ मत बोलो, फारिग मत बैठो। लें जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 पे। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में कोई बच्चा नज़र आता तो उसे सवारी पर बिठा लेते। कोई मीठी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती तो बच्चों को खिलाते। बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर बहुत खुश होते। लें जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 क्या है जी, कुछ नया सीखें। आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं, 3 जुमले लिखें। तो इसका जवाब क्या क्या बन सकता है, इसका जवाब ये बन सकता है कि घर के मुख्तलिफ कामों में वालिदा का हाथ बटाता हूँ।
یعنی کھانا پکانے میں ان کی مدد کرتا ہوں، صفائی ستھرائی میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اچھا دوسرا ہے جی بزرگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ہے اپنے ہم جماعتوں کی پڑھائی میں مدد کرتا ہوں۔ لیں جی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بڑا اہم پوائنٹ اس کے ساتھ کہ یہ ساری تعلیمات ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں۔ یہ ساری تعلیمات ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آپ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں بچوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کے لیے کیا حکم دیا، تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب پھر بچے یہ دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں ایک سوال اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، تو اس کا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 11 کی طرف۔ سوال نمبر 11 ہے کہ استانی کی مدد سے ایک چارٹ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں لکھیں۔ اس چارٹ کو کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ اب اس کا جواب کیا بنے گا؟ یقیناً یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 اہم اور قابل عمل باتیں درج کی جائیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ کون سے 10 پوائنٹ ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صدق، سچائی، سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ دوسرے نمبر پہ ہے امانت داری۔ امانت ایک نشانی ہے ایمان کی اور خیانت نفاق کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اخلاق حسنہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے سلام میں پہل کرنا۔ سلام کو عام کرو تاکہ محبت بڑھے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے معاف کر دینا۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اگر آپ کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ چھٹے نمبر پہ ہے پڑوسی کا حق۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اسلام میں پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ساتویں نمبر پہ ہے سادگی اختیار کرنا۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے غرور سے بچنا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے نرمی اختیار کرنا۔
اللہ नरमी को पसंद करता है और नरमी हर चीज़ को जीनत देती है। लें जी, ये कुछ पॉइंट थे जो उस्ताद की मदद से चार्ट पर लिखने थे और कमरा जमात में आवेज़ा करने थे। अब इस मशक के थ्रू जब आप बच्चों का जायज़ा लेंगे तो कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि ख़ातम का मैनी है, क्या मैनी है ख़ातम का? तो उसमें बच्चे फिर इसका जवाब बताएंगे कि ख़ातम का मैनी है आखिरी। फिर आप पूछ सकते हैं कि जब नया फल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसको देते? तो उसका जवाब बनेगा, जो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे वो है बच्चों को। उसके बाद आपने इस तरह के सवालात भी पूछने हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन हैं? तो बच्चे फिर उसका जवाब देंगे, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरा ये भी सवाल पूछ सकते हैं असेसमेंट में ज़ुबानी जायज़ा लेते हुए कि सच बोलना कैसी आदत है? तो बच्चे फिर इसका जवाब देंगे, सच बोलना बहुत अच्छी आदत है। इस तरह आप अगला सवाल भी पूछ सकते हैं कि हमें छोटों के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब आएगा कि हमें छोटों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी? तो इसका जवाब आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी और खैर की तालीम दी। तो इस तरह के भी सवाल आप पूछ सकते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब ये बनेगा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ जानते हैं? तो फिर बच्चे बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब आप एक कॉमन सा सवाल लाजमी पूछें बच्चों से कि जो लफ्ज़ मोहम्मद है उसके मायने क्या हैं? तो इस जो सवाल है ये वाला, इस सवाल से बच्चों की जो मोहब्बत है रसूल करीम से वो हमें वाज़े तौर पर पता लग जाएगी कि किस लेवल पे हमारे बच्चों की सोच है, किस लेवल पे वो खड़े हैं। तो बच्चे डेफिनेटली बताएंगे कि लफ्ज़ मोहम्मद के मानी हैं वो ज़ात जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, यानी ऐसी ज़ात जिसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा की गई हो दुनिया में, वो ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जब ये वाला सबक आप पढ़ा लें और उसके बाद जायज़े के लिए आपने सवालात भी पूछ लिए हैं, तो कोशिश करें साथ आप कोई सही और गलत की भी निशानदही करवा लें। जैसे आप पूछें अगर कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तो बच्चे बताएंगे सही। फिर आप पूछें आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, तो बच्चे बताएंगे सही। तो अगर आप पूछें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्का मुकरमा में पैदा हुए तो बच्चे बताएंगे सही। यानी इस तरह के आप सही और गलत की निशानदेही वाले भी सवाल ज़ुबानी जायज़े में पूछ सकते हैं। लें जी, ये तो हमारा आज का लेसन था जिसके बारे में हमने तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें प्रॉपर तौर पर समझ आ गई होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चों के लेवल पर आकर उन्हें समझाना है और एक एक चीज़ को वाज़े कर कर और आसान करके बच्चों को बताना होगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।